So uh, I am back on second video. Uh, before begin this discussion about the individual demand tool and another market demand tool, I have already uh, discussed about what is demand and what is law of demand. So if you are the one who have not watched this law of demand yet, first you have to watch that video, because then you come to know about it will become very easier to for you to learn this individual demand tool and market demand tool. So I am going to commence this video on a particular topic that is called uh, demand tool and its types. I have already told demand tool what is demand tool. Uh, right now, uh, I'm going to uh, discuss about what is individual demand tool. Look, customer customer demands things, goods at various possible price, possible price. Okay, over a period of time, or at a particular over a period of time, or a particular period of time. Take time. So this called one kind of demand rule, but for what? For those, these are customers, for individual. But when you combine these individuals all together, they will provide us market demand tool. So that's why we are going to discuss. These are two important topics. Uh, so we are going to discuss. These are related to law of demand as well as demand. So because I have already discussed about these minuscule things that uh, all the topics I upload here, they are all interrelated with each other. So you can't skip one and jump to another. If you have to understand this topic, first you should go read what is demand, and then you should know law of demand, and then you can reach here what is individual demand tool and then market demand tool. There are two types of demand tool. Uh, one is individual demand tool, another is market demand schedule. Market demand tool. So first we will read what is individual demand, then we will definitely start market demand schedule. Look, जब भी कोई कस्टमर, I can teach you through diagram as well as this table. One second. Okay. So look, this is one second. Yes, individual demand schedule. Individual demand. I'm going to teach you this topic thoroughly. Whatever we are going to discuss here, you should know one thing, that I will not sit you or end this lecture without reaching you full knowledge of this topic with lucid and clear uh, examples. So you should have trust on me. Definitely, I'm going to uh, reach you a good topic in terms of examples and statements and history, as well as all full detailed thorough topic. So फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व यू शुड नो. सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक कंज्यूमर है. वो जाता है मार्केट में. वो वो क्या ले वो रखो यहाँ पर डिमांड प्राइस. यहाँ पर वो डिमांड करेगा. अच्छी तरह देखना मैं क्या कर रहा हूँ.
प्राइस में वो 10 रुपये की वो 10 चीज़ें लेते हैं, ठीक। फिर 8, 6, 5, 4, 3, ठीक। ये कंज्यूमर है, मतलब कंज्यूमर में है एक। अब पहले उसने 10 ली, फिर वो क्या करता है 20 माँगता है, क्योंकि देखो प्राइस डिक्रीज़ हो रही है और डेफ़िनेटली डिमांड विल इंक्रीज़। 30, 40, 50, 60, ठीक है। देखो ये है डिफरेंट एट पॉसिबल प्राइस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? देखो ये है डिफरेंट, ये डिमांड कर रहा है, जब प्राइस डिक्रीज़ हो रही है ये डिफरेंट डिमांड कर रहा है, यहाँ पर डिफरेंट डिमांड, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हेन ए कंज्यूमर demands goods at different possible price at a particular point of time, that is known as individual demand schedule. Now, if uh, uh, through diagram, we have to show this uh, what how this individual demand schedule looks. So then you can look here. For example, on axis, y axis and x axis, I'm going to show you price on y axis and uh, demand on this axis, x-axis. For example, on 10 it was just, it was 10, 20, 30, 40. On 8 it was 20, on 6 it was 30, on 4 it was 40. So like this you can see that what is how individual demand schedule looks. So it downwards from left to right. Okay, so now you can see that how this price individual demand schedule looks. So this is our demand schedule. If in other terms, uh, in uh, in other terms, in few words, if I am going to tell this, what is this demand schedule, individual demand schedule? So it, or in terms, we can say law of demand. Of demand. I have already told this. So law of demand and individual demand schedule are similar. They are interrelated to each other. So this is called individual demand schedule. Now I am going to, another term is uh, one second, I am going to erase first this. दूसरा जो है वो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो हम मिसाल लेते हैं, मिसाल हम लेंगे, एक मार्केट पे बी मार्केट है और सी मार्केट है। ए में जो है इसकी क्या डिमांड थी, देखो 10, 5, 4, 3, ठीक। इसकी रखेंगे हम 10, 20, 30, 40, ये इनकी डिमांड थी, इंडिविजुअल ए की और इंडिविजुअल बी है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये मार्केट है इन द सेंस कि ये टोटल है, ये टोटल है। जब हम ए प्लस बी करेंगे, यहाँ पर हमें ए प्लस बी करना है, तब जाकर देखिए 10 और 10 20, यहाँ पर 20 है इसकी मार्केट में डिमांड। तो 25 यहाँ पर है, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 43 है,
तो आप खुद सोच सकते हो कि जो मार्केट है वो टोटल कंज्यूमर्स की जो वो ईच पॉसिबल प्राइस पर वो डिमांड करते हैं, उसको जब हम क्लब करते हैं एक जगह, तो उससे हमें क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल मिलता है। तो ये थी, ये अब जो स्लाइड्स है जो मैंने बनाई है उस पर हम जाएंगे। अब हम देखेंगे कि वहाँ पर ये क्या है। ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया कि आपको समझ आना चाहिए। 1 सेकंड, ये देखो। देखो आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहाँ पर क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज, है ना, डिफरेंट क्वांटिटीज 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, बाय एट डिफरेंट प्राइस, एट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्राइस, ठीक। यहाँ पर तो आप खुद सोच सकते हो आपकी। देखो ये है क्वांटिटी डिमांडेड एप्पल की, ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है। ये मैंने पहले आपको दिखाया। ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक। मैंने आपको दिखाया। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे लगती है, ये देखो। यहाँ पर प्राइस क्या है, प्राइस 90 80, ये डिक्रीज हो रही है, और ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ये देखो, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम बोलेंगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मैंने पहले आपको उधर दिखाया था, मतलब ना, जो ब्लैंक पेज पर। तो ये वही है, मतलब इसकी जो है मतलब डिस्क्रिप्शन। ये तो आसान है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और एक्स एक्स पर हमने क्या दिखाया, हाँ, पॉइंट ए बी सी एफ रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये वही है, देखो। अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसमें क्या, देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। मार्केट डिमांड इज टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स टेकन टुगेदर आर विलिंग टू बाय एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो, मार्केट डिमांड जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो तमाम बायर टुगेदर लेना चाहते हैं, क्या कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, क्या बहुत सारी जो प्राइसेस वहाँ पर दी होती है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक महीने में एक बायर ने क्या लिया, या एक ही दिन में रखा, 1 डे क्या लिया, एक मतलब 10 आदमी सब्जी मंडी रखा, मतलब सब्जी मंडी में कोई भी जाता, बी। अब ए कितना लेता है, बी कितना लेता है। अगर ए ने 10 केजी लिए होंगे, 10 डिमांड, बी ने 5 तो लिए होंगे। जो कभी कुछ नहीं लेता है वो तो 5 लेता होगा। कितने हो गए टोटल, कितनी हो गई वहाँ डिमांड, 15। तो उसे 15 लिए मार्केट की, ठीक है। So we can prepare the market demand schedule by that commodity. We assume that there are only three. हम assume करते हैं कि वो 3 buyers हैं, अपनी मर्जी से ले लो in the market. The demand schedule of these buyers in table, ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो पहले प्राइस एप्पल की है वो डिक्रीज हो रही है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही, डिमांड जो मार्केट की है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये देखो इंक्रीज 6 10 14 18, देखो ये इंक्रीज हो रहा है। ये नहीं, इसको नहीं समझना कि ये डिक्रीज हो रहा है, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। देखो 90 80 सेंट। यहाँ पर क्या है, देखो मार्केट वन में एक बंदा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, पांच। ये वो इतनी डिमांड करते हैं। एक पहले एक करता था, ये प्राइस 6 थी ना। ये तो उन्होंने डिमांड की, टोटल डिमांड की, जब प्राइस 90 थी। 80 पर इसने 2 किए, 70 पर इसने 3 किए। लेकिन दूसरा बंदा जो है उसने 3 किए 90 पर, और थोड़ा अमीर था। 80 पर उसने 5 किए। दूसरा तीसरा जो दरमियाना था, मतलब ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब थे, उसने 2 किए थे, 3, या ऐसे ऐसे थे, ठीक। ये है, जब इन सबको हमने कलब कर दिया, इन सबको हमने कलब कर दिया, और हमें क्या मिली, मार्केट डिमांड शेड्यूल हमें मिला कि टोटल डिमांड क्या थी इस वीक की, इस महीने की, या इसकी क्या थी डिमांड शेड्यूल। अगर हम नीचे जाएंगे, मार्केट डिमांड कर्व इसके आकर हम देखेंगे, देखो ये यही है। मतलब ये जो असली, मगर मार्केट डिमांड में ये याद रखना है, यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ पर है ना, मार्केट डिमांड ये वाली, ये दिखाना होता है हमें, और ये प्राइस अलग करके ये नहीं दिखाना होता है हमें। कहाँ डायग्राम, ये देखो, ये है 90, प्राइस डिक्रीज हो रही है, देखो डिमांड इंक्रीज हो रही है।
सबकी, मतलब इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी। ठीक? तो इसके बाद हम जो दूसरा लेक्चर में दिखाने जा रहा हूँ वो है कि क्या है लाभ डिमांड जो है। अगर ये देखो, ये है ना डायग्राम ऐसे बनाई है कि हमें ऐसे डायग्राम, है ना, ऐसे डायग्राम। अभी तक तो हमने ऐसे ही पढ़ा, मगर आपको तो ये सवाल तो होगा ना, ये जो ये कर्व है ना, ये ऐसे क्यों, मतलब लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट क्यों है? बड़ा सवाल होगा ना आपके पास। इसके कुछ फैक्टर्स है तभी ये होता है, ये लॉजिकली है, ये ऐसे। इसलिए इसको हम इसके बाद जो वीडियो है उसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप और जो इसके बाद वीडियो वो और लेक्चर को देखोगे। तो थैंक यू।